خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. جبریل سدرا چھوڑ اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. سوئے جنت کو جائے، در تمہارا چھوڑ کر. اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں نثار. ایسے جلوے پر کروں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. کیا غرض کیوں جاؤ جنت کو مدینہ چھوڑ کر. اس کی طرف ماشاءاللہ. طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ ساجدہ صائمہ سیدہ فاطمہ عارفہ عادلہ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ عارفہ عادلہ
سیدہ فاطمہ عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ عاقلہ عاصمہ سیدہ فاطمہ خلد میں داخلہ سیدہ فاطمہ دو خدا سے دلا ہو کرم ہو عطا سیدہ فاطمہ ہو کرم ہو عطا سیدہ فاطمہ ساجدہ صائمہ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو شرف حاصل ہے ان کو منے سے نسبت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ہاں جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ مصطفیٰ سیدہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ مطلقاً باحیا سیدہ فاطمہ سیدہ زاہرہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ ساجدہ صائمہ سیدہ فاطمہ عارفہ عادلہ سیدہ فاطمہ عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ عاصمہ عاقلہ سیدہ فاطمہ خلد میں داخلہ سیدہ فاطمہ دو خدا سے دلا سیدہ فاطمہ ہو کرم ہو عطا سیدہ فاطمہ ہو کرم ہو عطا سیدہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ مطلق باحیا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ
فاطمہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ ہو کر ہو عطا سیدہ فاطمہ اور علی کے گھر کی زینت ہے نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے بیان کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا بیان کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک طلعت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاجواب ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاجواب ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا کہ دنیا میں رہے اور دے پتا جنت کی نگہت کا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا نبی کی لاڈلی علی محمد مدنی چینل کے حاضرین صدر آباد میں موجود عاشقان رسول آج چکے الحمدللہ جلوس مبارک کی ترکیب تھی لہذا ہم نے سلسلہ ہمدردی کے لیے ہم نے اعلان کیا تھا کہ امیل سنت جیسے ہی اپنے منچ پر جلوہ فرما ہوں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو سلسلہ ہمدردی دکھائیں گے۔ آج جو غمزدہ گھرانہ دکھی گھرانہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کی سچویشن کیا تھی۔ یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میرا نام عبدالرزاق ہے اور یہ میرا بیٹا ہے محمد یوسف۔ یہ تقریباً 5 سال تک چلتا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اس کی نسیں کھنچ گئی، تو اب یہ بالکل چل نہیں سکتا ہے اور بڑی پریشانی ہمیں، بس دعا کرے اللہ آسانی کرے۔ تو ہم نے پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، تو آج اللہ نے ہماری سن لی ہے کہ الیاس قادری صاحب باپا کے پاس جو ہے نا ہمیں اللہ نے بھیج دیا، تو انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ رزلٹ اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، واش روم وغیرہ میں، سلانے میں، ویسے تو بیٹھا رہتا ہی ہے، جب کھانا وانا کھانے میں تھوڑا سی دقت ہوتی ہے، اس کو پانی پینے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو ایک بندہ اس کے ساتھ جو ہے نا لگا رہتا ہے، اگر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اگر اکیلا چھوڑتے تو بعض اوقات اس کو کھانسی ایسی اٹھتی ہے کہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے اور پانی پلانا پڑتا ہے۔ میرا بیٹا محمد یوسف بھی بہت یعنی کہ عاجز سے آیا ہے کہ میں باپا سے ملوں گا، نہیں محمد یوسف؟ جی یہ باپا سے ملنے یعنی امیل حسن سے ملنے کے لیے آئے، ہاں، اور کیفیت آپ نے دیکھی کہ کس طرح کی کیفیت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس میں والد یقیناً اپنا کردار ادا کرتے ہوں گے، لیکن اصل تو خدمت جو ان کی کرتی ہے وہ ان کی ماں کرتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ہمارے اسلامی بھائی کیمرہ ریکارڈنگ تو ہم اسلامی بہنوں کو دکھانے سے رہے، ماں بہنوں کو دکھانے سے رہے، تو یہاں پر والد بھی اپنی خدمت بتا رہے تھے اور وہ بھی کرتے ہوں گے،
لیکن زیادہ تر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو دقت اور جو کوششیں گھر میں ماں کرتی ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، اور جو والد صاحب کو پریشانی ہوتی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس کو اٹھانا یہ کوئی آسانی ہے، والد صاحب اٹھاتے ہوں گے، والد صاحب لاتے ہوں گے، لے جاتے ہوں گے، تو یہ والد صاحب کے لیے بھی آزمائش ہے۔ البتہ ان کی ایک دلی تمنا آرزو پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے سنی، ان سے بھی سنی، وہ تھی امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری، اور وہ حاضری ہوئی کیسے ہوئی، کیا باتیں ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمدردی، اور اس میں امیر اہل سنت کے پاس والد سرپرست اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ غم زدہ ہیں، تو امیر سنت کا ماشاءاللہ ان سے ہمدردی والا انداز اور ایک تسلی، اور مزید کچھ اس طرح کے مدنی پھول آپ ہمارے سلسلے میں دیکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس ایک اسی طرح غمزدہ والد صاحب موجود ہیں۔ حضور آپ کا نام؟ عبد الرزاق، کچھ بتائیں امیر سنت۔ میرا بیٹا ہے محمد یوسف، یہ 5 سال تک چلتا تھا، 5 سال کی عمر تک چلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹانگیں بینڈ ہو گئی، ٹانگوں پر اٹیک ہوا، نسیں جو نا کھینچتی چلی، نسیں کھینچنے لگی۔ ہاں، تو آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ کا۔ اب یہ بدن کی بھی نسیں کھینچی ہوئی ہیں، ہاں تقریباً ہاتھ بھی، یہ جو پیچھے گچھا ہوتا ہے نا اس میں گٹھان لگی ہوئی۔ عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ 14 سال 14 سال کی۔ 14 سال کے ہوں گے، ماشاءاللہ یوں عقل سلامت ہے۔ عقل سلامت ماشاءاللہ۔ بیٹا بول سکتے ہو؟ چلو امیر سنت صاحب بات کرو، میں پکڑوں؟ اچھا کچھ سناؤ گے؟ پکڑ بھی لیں گے، یہ بولا پکڑ لیں۔ پکڑ لے۔ چلے بات کریں امیر سنت سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یوسف۔ محمد یوسف، ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی نعت پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں نعت شریف پڑھتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے صدقے میں آقا سارے جن کو دین ملا، نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہمیں غور کروں کہ اس سے پہلے جن بچوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان میں بعض ہوتے جو پیدائشی ان کے مسائل تھے، جیسے معذور ہے پیدائشی، یا آنکھ کا نور نہیں ہے، نابینا پن ہے پیدائشی، وہ والدین شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسی طرح کا ہے، اور ایک والدین وہ ہیں کہ جن کے سامنے ان کا بچہ 3 سال 4 سال 5 سال تک بالکل نارمل کھیلتا کھلتا رہا، چلتا پھرتا رہا، اور پھر اچانک وہ انہوں نے دیکھا کہ بچے کی کیفیت بدل گئی، تو ایسے میں زیادہ پریشانی یا غم کا معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کن کے لیے ہے؟ تو ان کے لیے جنہوں نے پہلے بچے کو بڑا کھیلتا کھلاتا دیکھا، یا وہ جو شروع سے ہی اسی طرح بچے کو دیکھتے ہیں، ان دونوں کے غموں میں بھی کوئی فرق ہوتا ہوگا؟ چلو حساسیت پر ہے، کبھی کوئی ماں یا باپ جو زیادہ حساس ہوں گے نا اسی کے مطابق ان کو غم ہوگا، بعض بالکل یہ توجہ نہیں دیتے تھے اور حساس کم ہوتے۔ البتہ یہ کہ نفسیاتی طور پر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہنستا کھیلتا بچہ اچانک جو ڈاؤن ہو جائے گا تو ایک دم صدمہ اس کو زیادہ ہوگا، اگر شروع سے ہی تو پھر وہ بندہ عادی ہو جاتا ہے اس کا، یہ ہے ہی شروع سے پیدائش ایسا ہی ہے۔ بڑا ہو کر بھی اس کو کچھ جیسے 5 سال کے ہوئے نا یہ یوسف، تو اب یہ 14 سال کے ہو گئے، تو اس کو 9 سال کا عرصہ گزر گیا سنبھالتے سنبھالتے،
तो अब इनके वालिदैन के ना ये इनकी इस कैफियत से समझो आदी हो गए होंगे। जो उस वक्त कैफियत थी कि ये पाँव में इनको तकलीफ हुई थी और ये खींचना शुरू हुआ, वो और अब कैफियत में फर्क होगा। जैसे मैयत होती है घर में तो रोते हैं धोते हैं, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं, खुशियां भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इसका भी ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर खुद जो तकलीफ में माजूर है, मरीज है, वो भी आदी हो जाता है। अभी इनको भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता होगा, ये आदी होगा। कभी कभी हसरत होती होगी कि मैं भी इस तरह दौड़ूं, मैं भी इस तरह भागूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। तो यहाँ आज मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले सिलसिलों में जो हमदर्दी के बोल आपके जो थे वो ज्यादातर उनके लिए थे जो वालिदैन है। अगर आज जो एक और जो मरीज के तौर पर जो एक बच्चा आपके पास मौजूद है, 14 साल की उम्र है, ये वालिद साहब कह रहे हैं कि अक्ल सलामत है, और अभी आपने एक बात का इजहार किया कि उसे भी देखते कि कभी कभी ऐसा होता होगा, तो ये दोनों के लिए तसल्ली के भी मदनी पुल दिए जा सकते हैं कि उनको अपने बारे में, जबकि अक्ल सलामत है लेकिन काफी मसाइल का वो सामना कर रहे हैं, तो उनको अपने बारे में क्या सोचना चाहिए और वालिदैन को अपने बारे में क्या सोचना चाहिए? वालिदैन के लिए ये बेहतरीन मदनी फूल है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनकी अक्ल सलामत है। अगर इतने बड़े बच्चे की अक्ल सलामत ना हो और जुनून की कैफियत हो, मार धाड़ करता हो ना, फिर जो आजमाइश होती है ना वो कुछ और ही होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल भी है और ज़हनी तौर पर मारधाड़ भी करते हो तो ये बोलते ये पुरसुकून है। इनकी आजमाइश तो है उसके मुकाबले में कम, लेकिन ये कि एक कांटा भी चुभता है तो बंदा बोलता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है। नस्ले का मरीज ये समझता है कि सारी जान की बीमारियां मेरे पास है। तो हर एक को चाहिए कि अपने से ऊपर की मरीज को, ऊपर के तकलीफ वाले को देखे, तो इस तरह अपनी तकलीफ जो है ना वो आसान हो जाती है। और फिर ये कि मुख्तलिफ रिवायतों पर गौर करें, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब किसी के साथ अगर कोई अल्लाह के का पुलिस वाला भी चले तो उसके पांव जमीन पर ना टिके, मेरे पास पुलिस, मेरे साथ पुलिस वाला है, SHO हो तो लोगों को धमकियां देता फिर है, मेरी SHO से दोस्ती, हाँ ज्यादा मत बोलना। तो जिसके साथ अल्लाह का आला उसकी क्या शान, क्या शान, ये सब्र करने वालों के लिए ये बिशारत है जबकि करें सब्र। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि मुसलमानों की तमाम भलाई घड़ी भर के सब्र में, थोड़ी देर के लिए भी सब्र कर ले तो सारी भलाइयां उसको जैसे मिल जाएगी। इसलिए बस वो अब सब्र के बगैर चारा भी तो नहीं है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि बेसब्री करें, थोड़ा रोए धोए मत्थे पर चाड़े। हम भी शायद थोड़ा साथ दे देंगे अगर इनका बच्चा दौड़ने फिरने लग जाता हो तो मिलजुल के रोना धोना शुरू कर देंगे तो भाई सही हो जाएगा। ऐसा है तो बेसब्री से जाहिर है कि सब्र के जरिए जन्नत का खजाना जो हाथ आने वाला था वो तो निकल सकता है हाथ से, ये मुसीबत दूर नहीं, तो इसलिए वो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ये भी सब्र करे, यूसुफ भी सब्र करे, अल्लाह की रिजा पर राजी किया, अल्लाह तेरा शुक्र है इस हाल में तूने रखा है कि ईमान की दौलत भी तो दी हुई है, ये कोई छोटी नेमत तो नहीं है। जैसे कि एक तरफ गैर मुस्लिम है और वो हर तरह से तंदुरुस्त, तवाना और माल दौलत सब कुछ है, और एक तरफ गरीब है जो बीमार है, कमर भी टूटी हुई है, टांगे भी टूटी हुई है, आंखें भी फूटी हुई, सब कुछ है मोमिन। अगर वाकई वो मोमिन है ना तो उसको कहा जाएगा ना कि तू ईमान दे दे, तो तेरे को ऐसे हम कर देते हैं बिल्कुल हट्टा कट्टा न मालदार, तो कभी भी ईमान देने के लिए तैयार नहीं होगा कि उससे तो मैं ही बेहतर हूँ, मेरे पास ईमान की दौलत, बड़ी दौलत, एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी ईमान देने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। चाहे दुनिया में कोई सारा सोना ढेर लगा दे हमारे सामने, हम थूकेंगे भी नहीं उसको ईमान के मुकाबले में। ईमान सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने अता की। फिर ये कम खुश नसीबी है कि हमें अपने महबूब का दामन दिया, ईमान के साथ साथ इनके जरिए हमको मुसलमान किया। ये भी सारे नबियों के सरदार है और तो हमें ज्यादा भलाई हासिल है। तो बहुत सारे ऐसे मकामात है जिनके जरिए हम शुक्र कर सकते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, माशाअल्लाह।
اور اللہ چاہے تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے ٹھیک بھی ہو اللہ کی جائے رحمت سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ واہ اللہ تعالیٰ دعا دعا کروں گا یہ آپ کو گفٹ تحفہ۔ ماشاء اللہ آپ آیا کرو نا اجتماع میں پابندی سے، انشاءاللہ انشاءاللہ رمضان شریف کے اعتکاف کی ترکیب ہو جائے، انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں تشریف لاتے دعا ہیں۔ کریں آپ۔ کہاں رہتے ہیں؟ نیا بات بتا رہے ہیں نیا بات۔ مامو ہوٹل۔ آپ کو تو میمن مسجد ہفتہ وار اجتماع بولٹن مارکیٹ ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، ہاں ایک دو مرتبہ گیا تھا پابندی سے جائیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ کر دو رحمان یوسف کو بھی لے جائیں، انشاءاللہ۔ ہے تو سمجھدار یہ ہاں۔ کوئی مسئلے تو کرے گا نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت سے ملنے کی خواہش، پھر امیر سنت سے ہو گئی ان کی ملاقات کے بعد کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت صاحب نے بس ایسی تسلی دلائی کہ ہم سب کچھ بھول گئے، ہم اور ہمارا بیٹا انشاءاللہ سب کچھ بھول کے کام کریں گے انشاءاللہ، نہیں نعتیں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس ان کی نظر کرم پڑ گئی انشاءاللہ، بیڑا ہی پار ہے یہ انشاءاللہ، رمضان میں ہی چلتا پھرتا آئے گا انشاءاللہ، یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے گا انشاءاللہ، اللہ سے امید ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیچارے دکھیارے جو اسلام بھائی آ رہے ہیں، ابا ملاقات کے بعد ان کی امیدیں، ان کی جو تمنا ہے، ان کی آرزو ہیں دیکھنے جیسی ہیں۔ بھوکیوں بہت سے کھائے، مکھیو بس بھوکا دعا سے کھاتا ہے، بیچارے دکھیا رہے، اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے۔ اب یہ ارشاد فرمائے کہ اس سے پہلے چند ایک بدنی بچے آئے، ان کو آپ نے جب عیدی دی تو آپ نے ان کے والد صاحب کو کہا کہ یہ آپ کی ملک ہے، اور جب آپ نے اس کو دی یوسف بھائی کو تو یوسف بھائی کی ملک کر دی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یوسف بھائی بھی یوں نہ دیکھا جائے تو ایک معذور ہیں، اس سے پہلے بھی جو بچے آئے وہ بھی بیچارے معذور تھے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کے والد صاحب کی ملک نہیں کی، یوسف بھائی کی ملک کی، اور پیچھے بچوں کی آپ نے ملک نہیں کی، ان کے ابو کی ملک کی، کوئی اس کے متعلق مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ دراصل نابالغ بچہ یا بڑا بھی ہو تو ایسا بے عقلا کہ جو مطلب نابالغ کے حکم میں آ جاتا ہو، تو اگر وہ اپنی ملک میں، اس کے ملک میں کوئی چیز دے دی جائے، یعنی باپ کو دیا، اس کو دیا، تو اگر اس کی قبضے کی صلاحیت قبضہ کرنا جانتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا، کہ نابالغ بچے جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا، کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا، تو اب یہ اس کا ہو گیا، یا باپ نے اس کی نیت سے قبضہ کیا کہ یہ اس کا ہے کر کے، تو اب یہ نابالغ اس کا مالک ہے، یہ اس کے لیے امانت کے طور پہ سنبھالنا پڑے گا سرپرست یا والد جو بھی ہے اس کو، یا پھر یہ اسی پر خرچ کر دے، اس کی اجازت سے بھی دوسرا اس کو استعمال نہ کرے، اس کے مسائل ہیں۔ تو اب یہ یوسف بھائی تھے تو 14 سال کے تھے، الحمدللہ عقل سلامت تھی، اور وہ کلام بھی یاد کیا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے اور غیر مسلموں میں فرق ہے، میں اس کو سوچ رہا تھا کہ اس کو بولا نعت پڑھو جس نے کلمہ اور یہ کلام اپنے کو سنایا، یا غیر مسلم جو ہوتے ہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ غیر مسلم کو اگر یہ کہا جاتا کہ کچھ سناؤ، شاید وہ گانا سناتا، تو یہ اللہ کا کم کرم نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، اور ہمارا ذہن بھی یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ کہ یہ چونکہ سمجھدار ہے، بالغ ہے، اور صرف بیچارے کے بدن کی نسیں وغیرہ پٹھوں کے مسائل ہیں، تو یہ کہ اس کے قبضے میں یہ آ گیا، قبضہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، سمجھدار بھی ہے، تو یوں میں نے اس کو دے دیا۔ اب یہ ہو سکتا ہے بالغ بھی 14 سال کی عمر میں ہوا نہیں ہوا، یہ کچھ کنفرم نہیں ہے۔ اسلامی سن سے حساب لگانے کا رجحان کم ہے، اسلامی سن کے حساب سے، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے لڑکا جو ہے 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو جاتا ہے، یا اگر یہ اس طرح بالغ نہیں ہوا اس کی کوئی نشانی سے، تو جیسے ہی
15 साल का पूरा होगा इस्लामी साल के हिसाब से तो ये बालिग हो जाएगा। अब इस पर नमाज रोजे और ये सब फर्ज हो जाएंगे और अभी अपनी मर्जी से अपनी रकम भी खर्च कर सकेगा। तो अगर ये नाबालिग हैं यूसुफ भाई तो ये अपनी मर्जी से किसी पर खर्च नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते। अपने ऊपर खर्च करना और चीज है कि इन पर तो ये चीज इनकी है जो खर्च कर सके, खाने की चीज ये खा सकते हैं, किसी को नहीं खिला सकते नाबालिग जो है। लेकिन हमारे यहाँ इन मसाइल का बिल्कुल भी रुझान मालूमात का है ही नहीं, मतलब तो इसलिए वालिद को चाहिए कि जो भी चीज बच्चे के लिए खरीदे वो अपनी नीयत से खरीदे। खिलौना लिया अपनी नीयत से लेके खिलौना मेरा है, अब इसका बच्चा खेल रहा है तो कोई रिश्तेदार का बच्चा है तो वो भी खेल सके उससे, वो बच्चा इजाजत नहीं मांगेगा ना उसका बाप इजाजत मांगे, वो खेलना शुरू कर देगा। इसके मसाइल है, अपनी मिल्क होगी कि जो खेले तोड़े फोड़े सही है। कपड़े का भी मशवरा बाबा दे देना चाहिए। कपड़ों का तो ऐसा होता है कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना थोड़ा, इसको कपड़े छोटे पड़ जाते हैं तो ये दूसरा भाई पहनता है, जी हाँ, दूसरी बहन पहनती है, तो इसलिए ये कपड़े भी बाप को चाहिए अपनी मिल्क में रखे ताकि दूसरे बच्चे को पहना सके, वरना एक बच्चे के नियत से खरीदे या बनाए और अब या किसी ने गिफ्ट उसी को दिया और इन्हें तरकीब नहीं बनाई, बाप ने कब्जा किया उसी की नियत से जैसे, तो अब ये बच्चे का हो गया, अब दूसरा बच्चा इसको पहन नहीं सकता। लेकिन इसका हल है, आसान हल है, अगर थोड़ा सा जहन हो ना तो आसान हल है। वो ये कि अब नहीं पहले पता था, आज मसला पता चला तो अब इसके खिलौने बच्चे के, अब वो नहीं खेल रहा या भले खेल रहा है तो वो खिलौने, उसके कपड़े, जो भी है मार्केट वैल्यू से बाप उसको खरीद सकता है, उसको बेच सकता है मार्केट वैल्यू से। तो अब पुराना कपड़ा है, जैसे ये आपने जोड़ा बनाया समझो बच्चे का लिया उसमें से रेडीमेड में से, तो क्या वो 300-400-500 का आता हो, क्या हजारों का आता है जैसा कपड़ा। हाँ, मिसाल के तौर पे आपने 500 का लिया जोड़ा कोई, अब वो अब पहन लिया, धुल गया, घिस गया, अब इसकी वैल्यू तो मेरा ख्याल 10 रुपए रह गई होगी, 10-15 रुपए, यानी जो भी वैल्यू मार्केट हो। मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका ये कि किसी कबाड़ी को दिखा दिया कि ये कितने का लोगे, तो आप 500 का जोड़ा उसको दो, ये बोलेगा 5 रुपए आएंगे, या बोल देगा भाई ये तो पोछा लगाने में भी काम नहीं आएगा, इसको फेंक दो। समझे? तो ये इस तरह यानी कि 1-2 कबाड़ियों को पूछ कर अपना जहन बन जाए ना। अगर ये फेंक दो बोलता है तो इसकी ना मानी जाए, कि अगर वाकई फेंकने जैसा है तो फिर ठीक है, तो जो दूसरा इस्तेमाल करेगा इसको तो इसका मतलब फेंकने का नहीं है। तो वो 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए जो भी कोई कबाड़ी इसकी वैल्यू लगाएगा समझो, तो वो मार्केट वैल्यू एक तरह से हो गई। तो यूं मतलब ये कि 25 रुपए का वो जोड़ा खरीद ले। इस तरह खिलौने, टूटे फूटे खिलौने कोई थोड़ी बिकते हैं, ये कचरा कुंडी पे डालते हैं। तो बहरहाल इसकी भी मार्केट वैल्यू कुछ लग जाती हो तो जो भी थोड़ी बहुत लगती है, ज्यादा देने में हर्ज नहीं है, मार्केट वैल्यू से कम देने में मसला है। तो यूं इसका जितना भी लाट होगा ना सारे का सारा ये 200-500 रुपए में आप खरीद सकते हैं, जैसे कि वही मार्केट वैल्यू में इतना महंगा नहीं होता ये। आप खरीद लिया, अब आप सारे बच्चों को इजाजत दे दें, अपने दिल में बच्चे तो क्या इजाजत लेंगे आपसे कि ये मेरे जितने बेटे हैं पोते हैं सब भले खेले इससे, और सबके लिए मुबाह कर दें, सब खेलो। तो यूं एक मतलब शरीफ मसले पर अमल हो सकता है, लेकिन जहन बिल्कुल नहीं है इस तरफ, तवज्जो ही नहीं है। ये मसले सुनकर भी लोगों को ताज्जुब होता हो कि यार ये क्या बोल रहा है। ये सब बाहर शरीयत के 14वें हिस्से में इसके मसाइल लिखे हुए इस तरह के, फतह रज़विया शरीफ में भी है। इन मसाइल पर बाज किताबें भी लिखी हुई हैं, लेकिन मुताला करे कौन। 500 रुपए का खरीद लिया सारा, खिलौने कपड़े वगैरह, तो अभी 500 रुपए किसको देवे? हाँ, मिसाल के तौर पर मार्केट वैल्यू 500 बनती है, हाँ एक मिसाल, और इसने ले लिए, अब ये 500 रुपए उसी नाबालिग बच्चे की मिल्क है, उसकी यानी कि ओनर उसका मालिक वही है नाबालिग बच्चा, और ये 500 रुपए उसके लिए जमा कर ले, बालिग हो तो दे दे, या इस पर ही खर्च कर दे, दूध में, टॉफियों में, गोलियों में, चॉकलेट में, या खाने में, फीडर में, जो भी इसके इस्तेमाल की चीजें, दवा दारू में, तो उस 500 रुपए उसको उसके खर्च कर दिए तो भी चलेगा,
ये अच्छी आपने तवज्जो दिलाई कि ये पैसे उसकी मिल्क होगी। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बहुत अहम मसाइल हैं और हमारे घरों में बसा औकात हम इसका लिहाज नहीं रखते और माशाल्लाह ये हज़ारों इस्लामी भाई फैज़ान मदीना में हैं, ये भी सुन रहे हैं, सदाराबाद में भी हैं, मुख्तलिफ मकामात पर। तो ये बहुत अहम मसला है और साथ साथ जो अहम तरीन बात अमीर सुन्नत ने अभी के मदनी मुज़ाकरे में जो इरशाद फरमाई वो ये है कि इस्लामी तारीख के मुताबिक अपनी जो बालिग होने ना होने के सारे मसाइल हैं। तो अब डेट ऑफ बर्थ हमारी पैदाइश की इस्लामी तारीख क्या है? अब इस वक्त जितने भी इस फैज़ान मदीना में भी अगर इस्लामी भाई जो मौजूद हैं या हाज़िर नाज़रीन, एक ऐसे सवाल, ठीक है ना भाई, मैं हाथ उठाने का नहीं कह रहा, आपके सामने एक सवाल बयान कर रहा हूं कि किस को अपनी इस्लामी तारीख, पैदाइश की इस्लामी तारीख पता है तो वो नोट करे ज़हन में मुझे। तो एक शायद हजारों होंगे कि जिन्हें आज अभी इस वक्त भी अपनी इस्लामी तारीख पता नहीं होगी कि मैं पैदा कब हुआ था। तो क्योंकि हमारे घरों में भी बर्थडे मनाने का रुझान है, सालगिरह मनाते हैं, मगर वो इंग्लिश तारीख के हिसाब से हमारे बर्थडे या सालगिरह मनाई जाती है। तो इसमें मैं ये मशवरा दूंगा, ये हजारों इस्लामी भाई जो फैज़ान मदीना में हैं, मुख्तलिफ मकामात पर हैं, मदनी चैनल पर हैं, आज अभी इसी वक्त कोशिश करें, अभी तो खैर फैज़ान मदीना में आप जो मदनी मुज़ाकरे के बात कर लें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मदनी तारीख, इस्लामी तारीख चेक कर लें। आपके मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर होते, कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर भी अगर आप अपनी इंग्लिश तारीख डालेंगे डेट ऑफ बर्थ की तो वहां से आपको आपकी एक मदनी तारीख यानी इस्लामी तारीख आपको मिल सकती है। अब उसमें हो सकता है कि चंद दिनों का फर्क हो। अब भाई ये नॉर्मली मोबाइल फोन के जरिए जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो तारीख चेक की जाती है, तो अब मुझे इसमें वसवसा है, एक इश्काल है जो मैं आप सर्च करना चाह रहा हूँ। उसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने मोबाइल फोन में अपनी मेरी जैसे इंग्लिश तारीख है 8770 8 जुलाई 1970, मैं 8 जुलाई 1970 से लिखूंगा ना तो और मैं बटन वगैरह दबाऊंगा, चंद चीजें प्रोसेस करूंगा तो वहां एक इंग्लिश उर्दू तारीख इस्लामी तारीख आ जाएगी कि 8 जुलाई 1970 को इस्लामी तारीख क्या थी। ये मुझे सॉफ्टवेयर बता रहा है, 4 जमादुल उखरा या इस तरह जो भी आ जाएगी। अब मुझे एक इश्काल है बाबा जो मैं आप सर्च करना चाह रहा हूँ, सवाल है, यूं समझे कि अब ये तो एक कैलेंडर है, अब हो सकता है कि इस पूरे मतलब तकरीबन 49 या 50 साल के अंदर कई दफा चांद का फर्क हुआ होगा। अच्छा, मैंने कुछ जाती तौर पर कोशिश की, मुझे 8 जुलाई 1970 का अखबार कहीं से मतलब कि मैं अरेंज कर लूँ कि उस टाइम अखबार तो निकलता होगा, तो वो अखबार के अंदर कोई इस्लामी तारीख तो होती है, शायद पहले भी होती होगी, अब भी तो होती है अखबार के अंदर, तो पता चल जाए। लेकिन अब तक वो इसमें नहीं हुआ। लेकिन अब वो जो इस मोबाइल, क्योंकि अब जो हम कह रहे हैं ना कि आप मदनी तारीख या इस्लामी तारीख निकाल लीजिएगा तो अक्सरियत इस तरीके से निकालेगी जो मैंने अभी आपके सामने मोबाइल का बयान किया, या कोई सी किताब विताब आएगी। तो अब ये जो तारीख आई है तो क्या इसी को हम अपने मान लें या कुछ आगे पीछे को सोचे कि देखिए आपका मैंने एक अंदाज देखा है, जब भी आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी है ना, आपने हमेशा कहा है कि पासपोर्ट पर ये लिखी हुई है, आपने कभी ये नहीं कहा कि ये, यानी ये मुझे मैं मोबाइल का ना हो तो शायद जब भी मैंने आपसे सुना है आपने हमेशा ये जुमला कहा है पासपोर्ट पर मेरी ये तारीख लिखी हुई है, और आपने कभी ये कहा नहीं है कि मेरी तारीख विलादत यही है। ये अब कुछ अंदर की बातें बाहर की बातें पता नहीं, लेकिन मैंने अब सबके सामने कर दी है। अंग्रेजी तारीख तो मुझे पता ही नहीं है, वही लिखी हुई जो भी हो। तो इस्लामी तारीख ये मेरी बड़ी बहन मरहुमा ये फरमाती थी कि 26 रमजान को 27वीं रात आने से पहले, सूरज डूबने से पहले, असर और मगरिब के दरमियान तुम पैदा हुए हो। ये मुझे बस इस वजह से मतलब मुझे मालूम है। तो बड़े बूढ़ों को घरों के बाजों का पता होता है, पहले इस्लामी तारीख का रुझान था, अब बदकिस्मती से और फिर रमजान शरीफ, तो रमजान शरीफ में तारीख ज्यादा याद रहती है। तो बहरहाल ये तरकीब है। वो आप कैलेंडर का बता रहे तो वाकई वो तो मशकूक है, इसका कोई हल भी नहीं है कि क्या करे आदमी, ज़न्ने गालिब करे, यही समझ में आता है। जहाँ तौक़ीत वाले भी यही कहते हैं कि ये तौक़ीत वाले जो हैं, इल्म तौक़ीत वाले, वो जो इस तरह की मालूमात रखते हैं, तो ये जो
ہجری کنورٹر ہوتا ہے اس میں ایک آدھ دن کا بعض اوقات فرق پڑ جاتا ہے. جی وہ کیلنڈر ایک بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے قیاس سے لوگ اپنے جو بھی ان کا طریقہ کار اس کے مطابق بناتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مطلب یہ نہیں کہ جو شرعی احکام یہی ہے کہ وہ اس کا تعلق چاند سے ہوتا ہے. روزہ بھی جیسے چاند دیکھ کر ہی رکھا جائے گا، کیلنڈر سے نہیں. چاند کیلنڈر میں ٹھیک ہے سارے سال کا کیلنڈر چھپ جاتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جب روزہ رکھنا ہے چاند دیکھو. اور رمضان شروع کیا چاند دیکھ کر، آپ بولو کہ وہ چاند نظر نہیں آیا لیکن بادل تھے فلاں تھے، تو قیاس آرائی سے نہیں چلے گا کہ ہر مہینے چاند کوئی نیا تو پیدا ہوتا نہیں ہے، ایک ہی چاند ہے جو زمانے سے چلا رہا ہے. تو اس کے نظر آنے کا مسئلہ ہے. اب کوئی چشمہ لگا کر دیکھے یا دوربین لگا کر دیکھے یا آنکھیں اس کی بہت تیز ہیں تو ویسے ہی دیکھے، دیکھنا اس کا شرط ہے. دیکھے یا دیکھنے والوں کی گواہی گزرے، اور جو مطلب یہ کہ قاضی ہو جو عالم دین ہو اور وہ اس پر فیصلہ کرے کہ بھئی ایسے موقع پر اتنے گواہ چاہیے، جب بادل بالکل آسمان صاف ہو تو بھئی اتنے گواہ کافی ہیں، جب دھول یہ ہو تو اتنے گواہ سے بھی گزارا ہو جائے گا. یہ سب مطلب یہ علماء کا کام ہوتا ہے. تو اس میں یعنی کیلنڈر پر بھروسہ نہیں. اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے تشریف لے جانے کا مسئلہ، تو اس میں بھی عید کا چاند وہی اس کے بھی احکام ہے کہ دیکھنے والے جب بالکل آسمان صاف ہے تو بہت سارے دیکھنے والوں کی گواہی چاہیے، اور بادل ہے دھول ہے تو پھر وہ بعض اوقات ایک کی بھی گواہی چل جائے گی، لیکن وہ قاضی اعتماد کرے اس گواہ پر. یہ قاضی کا میٹر ہوتا ہے. اب قاضی کے پیچھے جاہل لوگ ڈنڈے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنی قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں کر دیا تو یوں ہو گیا. تو نہیں کرنا چاہیے. علماء کے پیچھے رہو گے تو جنت ملے گی، ورنہ یہ ماڈرن لوگوں کے پیچھے اگر چلو گے نا، وہ تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں اور توقیت دانوں کے پیچھے تو کوئی آگے پیچھے ہو جاؤ گے. تو اس لیے عاشقان رسول علماء جو فیصلہ کرے نا، میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے. اپنے آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں. آخر نماز بھی تو مسجد کے امام کے پیچھے پڑھتے ہی نا، پیچھے اس امام کے. اور جنازہ کوئی سائنسدان آئے کر یا کوئی مطلب کوئی بڑا فن خان ترم خان آ کر جنازہ ہمارا تھوڑی پڑھائے گا. عالم پڑھائے گا، امام صاحب پڑھائیں گے. کوئی نیک آدمی داڑھی والا سنتوں کا پابند وہی تو پڑھائے گا نا جنازہ، اور ہمیں قبر میں اتارے گا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بیچارہ وہی کرے گا. باقی ماڈرن لوگ جو یہ طرح طرح کی مطلب اپنی ہوشیاریاں کرتے رہتے ہیں اسکرینوں پر، ان کو جنازے کی دعا بھی پتہ نہیں آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی. کمال تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو کبھی باپ نے یہ نہیں کہا کہ یار اپنے ہسپتال میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے نا، اسپیشلسٹ، کیا بات ہے، اس کو ذرا بلا کے میرے بچے کے کان میں اذان دلا دو. نہیں، قریب سے قریب مسجد امام نہیں تو مؤذن بلا کے داڑھی والے سے ہی اس نے اذان دلانی ہے، ورنہ تو ایسا لگے کہ اذان وقائے گی نہیں. وہ بولے کہ نہیں صحیح ہوا نہیں ہے. مدینہ برابر ہے. کوئی افسر یا کوئی لیڈر آ کر یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یا پروفیسر آ کر اذان نہیں دیتا ہے. یعنی زندگی کے یہ دو اہم مرحلے ہیں، بچے کے پیدا ہونا اور ایک شخص کا مرنا. ان دونوں وقت میں مسلمان کو ایک مذہبی عالم مولانا کی ہی حاجت رہتی ہے. اور یہ اس پر مطلب سمجھے کہ دنیا میں پریکٹس رہی ہے کہ یہ دونوں جگہ پر چاہیے یہی، کہ کوئی مطلب کہ دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عاشقان رسول جائیں گے جنت میں آقا کی رحمت سے، تو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. جنت کسی افسر کی، لیڈر کی، پروفیسر کی، لیکچرار کی، وزیر کی، مشیر کی، ان لوگوں کی نہیں، علماء کی ضرورت پڑے گی. حدیث پاک میں علماء کی ضرورت پڑے گی وہاں. اور اس حدیث شریف میں کہ جیسے اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو لوگ علماء سے پوچھیں گے کیا مانگے، آپ مشورہ دیجئے ہم کیا مانگے. امی ابو کو نہیں پوچھیں گے، ٹیچر پروفیسر کو نہیں پوچھیں گے، عالم دین کو پوچھیں گے جو جنت میں ہوں گے. تو جو جنت میں ہوں گے یقیناً وہ اہل ایمان ہی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے، عاشق رسول ہوں گے، یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں اہل ایمان وہ ہوں گے جنت میں. تو یہ اس لیے کہ وہ عالم دین ہے اگر اور ہے عاشق رسول، گمراہ نہیں ہے، بد دین بد مذہب نہیں ہے، تو پھر بس ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے.
یہ ہمیں جنت لے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بڑے علم دین کے مدنی پھول مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور ہم مدنی مذاکرے میں معتکفین کے تاثرات بھی دیکھتے سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں معتکفین کیا کہتے ہیں. جی حسان میں کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی یعنی وہ جو چاند کے حوالے سے کہ رمضان کا چاند اس میں مطلع صاف نہیں ہے تو ایک کی گواہی ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ 2 مرد اور جو عادل ہوں اور یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہوگی. رمضان شریف میں یہ رعایت ہے، یہ فرما رہے نا باہر شریعت میں ہے. یہ مطلع صاف ہوئے نہ کوئی نہ کہ گرد و غبار دھول مٹی بادل کچھ بھی نہ ہو. تو ایسے میں مطلب یہ کہ 2 کی گواہی ضروری ہے، کم از کم 2 کی. بادل وغیرہ ہو تو گرد و غبار دھول مٹی اندھیرا چھایا ہوا ہے اس طرح کا ہوتا ہے نا کبھی، تو ایسے میں مطلب یہ کہ 1 کی گواہی ضروری ہے. وہ جم غفیر کا بھی تو لکھا ہے، بھیڑ چاہیے اس میں، بہت سارے گواہ چاہیے. وہ قاضی جو فیصلہ کرے وہ عالم ہوتا ہے. قاضی ہوتا ہی عالم ہے. جج یہ ہماری کورٹوں کے جج عالم ہوتے نہیں ہوتے یہ بیس نہیں ہے. ویسے شرعاً جو قاضی ہوتا ہے وہ بہت بڑا عالم بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اپنے دارالفتہ اہل سنت میں کہ وہ نکاحوں کے طلاقوں کے مسائل نمٹاتے ہیں، خاص کر ان میں قضا کی جاتی ہے. قاضی ہمارے ہوتے ہیں مفتی عالم، تو یہ لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی. یوں مطلب بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا یہ قاضی. اب ٹھیک ہے ہمارے یہاں قانونی طور پر مسائل اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن اسلام تو موجود ہے نا. ہمارے ملک میں بھی اسلام موجود ہے، دنیا بھر میں اسلام موجود ہے. تو جہاں جہاں لوگ اپنے طور پر یہ ترکیب کر لیتے ہیں. قاضی سمجھ میں آتا ہے بابا، کیونکہ جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو قاضی چاہیے ہوتا ہے. اچھا وہ قاضی نہیں ہوتا، مگر اس کو کہتے قاضی ہمارے یہاں قاضی کہتے ہیں، لیکن ایکچولی جو قاضی جو قضا کرتا ہے یعنی فیصلے کرتا ہے وہ قاضی اور ہوتا ہے، اور نکاح پڑھانے والا قاضی اور ہوتا ہے. مطلب یہاں بھی چاہیے ان کو داڑھی والا یا نکاح پڑھانے والا بھی نارملی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے معتکفین کیا کہتے ہیں سنتے ہیں. مرحبا مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا. ہمارے اسلامی بھائی ہیں اندر ہمیں جو درس دیتے ہیں تو انہوں نے یہ سب کچھ ہمیں بتایا، شاپر دیا ہے، یہ تفصیل سمجھائی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے. یہ مقصد بتایا کہ بھائی مسجد کے اندر جو ذرات وغیرہ گرے ہوئے اٹھائے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ادھر دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ میں آ کے ہمیں پتہ چلا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ سکھاتے ہیں اور نوٹ کرواتے ہیں ہمیں. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے کہا تھا کہ مسجد کے بہت آداب ہوتے ہیں اور ان کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ بہت اجر کا کام ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دعوت اسلامی میں وہ بتاتے ہیں تاکہ وہ مکمل اسلامی طریقے پہ ہمیں سیدھا کر کے چلا لے. بڑی بڑی چیزیں تھوڑی بہت پتہ تھی وہ ان میں بھی بہت غلطیاں تھی جو کہ ادھر آ کے صحیح کرنے کو ملی ہے، اور بہت فائدہ ہوا ادھر آنے کا. بہت اچھا محسوس کرے. ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مل گیا ہے جو سر پہ ہاتھ رکھنے والا. پہلے تو در در کی ٹوکرے کھاتے پھرتے تھے، اب تو مل گئے پیر صاحب. رکن شورا نے جزور کے بعد حلقہ لگایا، اس میں رکن شورا نے نماز کے بارے میں کافی ہمیں نماز کی اہمیت و فضائل ہمیں بیان فرمائے. صف بندی کے بارے میں متعلق انہوں نے ہمیں کافی ترغیب دلائی، معلومات دی. کبھی بھی جو حضرت صاحب کو سامنے نہیں دیکھا تھا، چل مدینہ جو ہے نا، تو وہ خواہش تھی میری. تو میں وہ خواہش لے کے ادھر آیا ہوں. میرے جھگڑے تھے کافی دوستوں سے، تو جب ادھر میں نے بیان سنا کہ وہ معاف کر دینا چاہیے اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے. کال کی ہے اپنے دوستوں کو، وہ جو لوگ تھے جن سے میرا جھگڑا تھا تو وہ سب سے میں نے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا. پہلی بار آیا ہوں مدنی چینل دیکھ دل کہہ رہا کہ ساری عمر یہی رہے، ہماری موت بھی یہی آئے. پورا میں نہیں ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد
दिल कर रहा है कि दावत इस्लामी के साथ काफिले में जाएं, सारी उम्र इस काफिले में गुजारें। जो हमने 50 साल की जिंदगी गुजार ली है वो हमने बहुत बुरी गुजारी है। मैं इसी नीयत से आया हूँ कि वहाँ जो है हमारे इलाके में दीन के काम की ज़रूरत है कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ, वहाँ अपना जो है ना दीन का काम करूँ। 3 साल से ये सोच रहा था कि जो है ना एतिकाफ में बैठ के मैं कुछ सीखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन है, पहले दिन में जो है ना बहुत सारा सीखने को मिला है। वज़ू की सुन्नतें 14 सुन्नतें सीखने को मिली है। मुझे उम्मीद है कि इन 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना मैं बहुत फैज़ान मदीना से ख़जाना ले जाऊंगा। जी आज के दिन कुछ दुआएं सिखाई हैं और मदनी कायदा पढ़ाया गया है स्टार्ट से। असर की नमाज के बाद जो मदनी मुज़ाकरा हुआ था उसमें अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे के आगाज में क्या इरशाद फरमाया? कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में कि कुरान पाक को सीखना, तो हमें भी चाहिए कि हम कुरान पाक सीखें। मैंने 32 साल मुलाजमत की, दुनियावी तालीम सीखी, दीन नहीं सीखा। इसी मकसद के लिए मैं यहाँ हूँ ताकि मेरे दीन ताज़ा हो जाए, मैं दीन सीख लूँ। सुबह मैंने फजर की नमाज के बाद बयान सुने मौलाना साहब के, अमीर सुन्नत के बयान सुना। उसके बाद बेहतरीन निज़ाम था जो दर्स कुरान के बारे में था। ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ी मुफीद थी। यही मैं सीखना चाहता था जो मुझे मिल रही हैं। कामी मेरी दूर हो रही हैं। ये इस माहौल में आकर जो छोटी मोटी मुझ में गलतियाँ थी वो अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। दावत इस्लामी के भाई हैं तो उन्होंने मुझे दावत दी थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं डांस वांस करता हूँ टीवी चैनल पे इलाकों में, तो मैं तौबा करना चाहता हूँ इन चीज़ों से, तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल होगी, आप मेरे साथ चलें, फैज़ान मदीना चलें। इलाकों में शादी ब्याहों में प्रोग्राम करता हूँ, मुझे बहुत से लोग जानते भी हैं। मैं सर्कसों में भी काम करता था। तो मसलन ये है कि मेरा दिल भर गया इन चीज़ों से। मैं तौबा करी, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कब्र के अजाब से डरता हूँ। मेरी वालदा ना बहुत रोती थी, मेरी वजह से रातों को जागना। पहले 1-2 बार मैंने इग्नोर कर दिया था, मगर फिर एक बार मैंने चलो यार सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। नशा नहीं करे ना तो डांस नहीं होता था, उसको आम यानी अपनी ज़रूरत बना ली थी। जिन्होंने दावत इस्लामी बनाई, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इनकी वजह से मैं आज इतना खुश हूँ। मेरी वालदा खुश है, मेरे भाई खुश हैं। जिसके घर में मेरी वीडियो है डांस वगैरह की, वो प्लीज़ डिलीट कर दें। झूठ नहीं कह रहा, मैंने कभी पहले रोज़े नहीं रखे, और रखे भी तो तोड़े। मगर नमाज की अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ के नमाज भी पढ़ना आ गई मुझे, कहाँ क्या पढ़ते हैं कहाँ क्या नहीं पढ़ते, दुआ वो सब सीख रहा हूँ माशाल्लाह। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि मेरे लिए दुआ करें। मेरी जो वीडियो वगैरह जो बनी हुई है, ये जो लोग देखेंगे, मैं इसमें गुनाह में तो नहीं मेरा नाम आएगा? 12 बजे से बाद हम वुज़ू करके आए थे तो उन्होंने मदनी कायदा का सबक दिया था हमें। उसके बाद फिर हम बैठ गए थे, वो फ़र्ज उलूम वगैरह का उन्होंने कोर्स करवाया हमारे निगरान जो थे। अमीर सुन्नत ने फरमाया था कि कुरान पाक को सीख कर पढ़ें और मखारिज अच्छी तरह से अदा करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ कर बताया था। जैसे शीन है, शीन जिसको नहीं आती तो उसके मखारिज ठीक नहीं है, और वो सीखे कुरान पाक को अच्छी तरह से। मदनी मुज़ाकरे में भी शमूलियत हो रही है और बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं। हमारे कुरान के जो तलफ़ुज़ हैं वो भी सही करवाए जा रहे हैं, नमाज भी सिखाई जा रही है हमें। वज़ू के फ़वाइद बताए गए और दूसरा कि वज़ू की सुन्नतें बताई गई। निगरानी शुरा का भी जो बयान हुआ फजर की नमाज के बाद, इस बयान में सफाई का जो जहन दिया गया है, इस तरह का जहन पहले कभी मिला? नहीं, पहले कभी नहीं मिला। ये सफाई के बारे में कि साफ सुथरा रहना चाहिए। जो बयान सुना है इसमें सफाई सुथराई का बयान था, निगरान शुरा ने फरमाया इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मालूम तो हमें पहले से भी है, लेकिन वो अमल के जो जज्बा दिया ना उन्होंने, मेन चीज वो होती है उनकी कि उन्होंने अमल का जज्बा भी दिया साथ साथ। हदीस में सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जज्बा दोबारा पैदा हो गया है, तो इंशाल्लाह भी सफाई सुथराई रखेंगे। नीयत इंशाल्लाह जितनी भी हो सके सफाई करनी है। खाना खाने के बाद हम हाथों को इस तरह धोना चाहिए कि हाथ सारे साफ हो जाना चाहिए। बदबू किसी जगह से भी नहीं आनी चाहिए, जिसमें कि खुशबू लगाकर रखनी चाहिए। सारे दोस्तों को मेरा ये मैसेज है कि सफाई का खास कर ख्याल रखे। सफाई निस्फ़ ईमान है और साफ सुथरा आदमी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक को भी पसंद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है। मस्जिदां दे विच ये गल्लां कौन दसदा है जनाब? उत्थे ते नहीं ना दसदे, लेकिन इत्थे ते फिर माहौल सुलझाना पौंदा है ताकि माहौल साफ सुथरा रहे। साडी खातिर ही है सारा कुछ। मैं अपनी मस्जिद खुद भी इस चीज़ का एहतमाम करदा। मैनू नहीं ये आर महसूस होंदी कि मैं खुद इमाम खतीब होके मस्जिद साफ कर रहा। दूसरी चीज़ां
ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣੇਗਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ کے پھر بیت ہوما تے ساری زندگی دعوت اسلامی دا ہو کے مرا۔ اس سے پہلے بھی نگرانی شورا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آج جو بیان سنا ہے دل تڑپ اٹھا ابھی سے ملنے کی اور ملاقات کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری مرنے سے پہلے میری ملاقات فرما دے۔ باپا جان میری جان ہے، نگرانی شورا میرا دل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے کچھ مدنی اسلامی بھائیوں نے جو اپنے تاثرات دیے، ہو سکتا ہے شاید آپ کو اس میں سے کسی پر کلام ہو، لیکن مجھے ایک آپ سے عرض کرنی ہے کہ کل بھی ہم نے تاثرات لیے، اس سے پہلے بھی تاثرات سنے، اور کافی اسلامی بھائیوں کے تاثرات ہیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا بولوں، لیکن آپ نے دو تین دن ہو گئے، آپ نے کوئی ان کو کچھ بولا نہیں ہے کہ آپ ملنا چاہتے ہو، چلو یوں کر لیں گے۔ تو یہ بیچارے اتنے دور سے آئیں، اپنا کام کا چھوڑ کر آئیں، ان کو خواہش ہے آپ سے ملنے کی۔ ہاں مدنی اسلامی بھائیو، مت چھیڑ ملنگانو نہ، یہ چھڑ گئے بھائی، سب تیار بیٹھے ملاقات کے لیے۔ آپ بھی تو کوئی لفٹ کرا دو، یہ بیچارے کہہ ہی رہے دو تین سے ہم آئے ملاقات کریں گے۔ میں کیا آپ لوگوں کے درمیان آ جاؤں، مل لوں آپ سے، آ کر مل جاؤں، آ جاؤں بھائی کو دکھائیں، میں ان کے درمیان آ جاؤں، یہ مل لیں۔ آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ آئے گا تو جو گرا پڑی اور اٹھا پٹخ ہوگی تو کئی لوگ اس میں زخمی ہو سکتے ہیں، تکلیف میں آ سکتے ہیں، مسجد میں شور مچے گا، تو اتنے ساروں سے ملنا تو ممکن نہیں ہے نا۔ نہیں سمجھتے تو ہوں گے، ملنے کی خواہش تو ظاہر ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یہ میرا ملنا سب سے ممکن یوں ہی اس طرح ممکن ہے کہ ہم مدنی مذاکرے نہ کریں، روزانہ تراویح کے بعد میں بیٹھ جاؤں اپنی مخصوص جگہ پر، اور باری باری الگ الگ حلقے جو ہیں، دو تین چار حلقے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ ابھی آپ بھی تو اب دیکھیں نا، آپ نے بھی کیا کرا، یہ تو تیار ہیں نہ مدنی مذاکرے نہ کریں، ان کی ملاقات ہو جائے۔ ان کو یہ نہ کہ ہماری رات کو ایک بار ملاقات ہو جائے گی، اس کے بعد روز رات کو مدنی مذاکرہ کرتے رہیں گے۔ اتنے سارے ہیں تو مہینہ بھر تو لگے گا نا ان کو، وہ ہر ہلکے والا اپنا سوچتا ہوگا نا، ہلکے آ کر۔ کوئی بیچارے اتنے آئے تو کوئی، جیسے آپ کا ہم نے دیکھا کہ وہ ہر ہفتہ کو مدنی پیکج دیتے ہو، تو یہ معتکفین کے لیے کوئی سا ہے مدنی پیکج؟ رات کو تو ٹائم بچتا نہیں ہے، نہیں رات کا تو نہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے مدنی مذاکرے کے بعد، پھر سحری کی ترکیب۔ اب آج وہ طاق کراتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل حسب معمول صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی مدنی مذاکرے کے بعد ہونی ہے، تو رات کو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال یہ کہ ایک صورت ہے جو ہر سال ہوتی ہے ہمارے یہاں، کہ جو مدنی قافلے کے لیے زیادہ قافلہ پیسے جمع کروا دے، مدنی قافلے کے جمع کرا کے سلپ لے لے یا جو بھی ہے، تو اس کو ملاقات کا ٹوکن دیا جاتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ مدنی قافلے کا سفر کرنا ہو تو خالی کھوٹی جمع کر دیا کہ میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، میرے کو یہ دے دو، اور پھر یہ ذہن ہوگا اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں تو 100-200 اور صحیح، اور چھوڑ کے چلا جائے تو یہ دھوکہ ہوگا، گناہ گار ہوگا، جھوٹ بولے گا نا کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، اور یہ ارادہ ہے کہ سفر نہیں کروں گا۔ ملاقات کا ایک جیسے کہ چارج، تو ملاقات کا چارج نہیں ہے، یہ ریڈیوس کرنے کی ترکیب ہے نا، کہ مدنی قافلے والوں کی حوصلہ افزائی ہو جو سفر کریں گے، اور مجھ پر بوجھ بھی کم ہو جائے، کہ سب سے ملنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور چاند رات کو یوں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو گھر جانے کے لیے تیاری کرتی ہے، کہیں کی سیٹیں بھی بک ہوتی ہوں گی، تو یوں بوجھ تو کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی یعنی کہ رات دیر تک چاند رات کو
पिछले सालों मुलाकात होती रही है, इस साल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही कर लेते हैं। मदनी काफिलों की नियतें करें और पैसे जमा कराएंगे तो मतलब, और वो स्लिप देंगे ना या जो भी आपको, उस पर आपको टोकन मिलेगा। ये मंजूर है? माशाअल्लाह। इसमें दीन का भी फायदा है ना, अपना भी फायदा है। अच्छा, ये जो मदनी काफिलों के जो नियतें करेंगे टोकन भी मिल जाएगा, तो इसमें जो बाबा 7 दिनों के लिए 12 दिनों के लिए इस तरह कोर्सेज की जो नियतें करेंगे, तो क्या इनको भी आप की मुलाकात की सादत नसीब हो सकती है? कि वो नियत से मुराद वो है कि चांद रात को काफिला, मदनी काफिला। अब ये हमारी मदनी तरबियत या दारुस सुन्ना वालों के ऊपर है कि इनको रात को सफर करवाते हैं या ईद को फजर के बाद करवाते हैं या ईद की नमाज के बाद करवाते हैं। इन्होंने कहीं जाना नहीं है, यहीं पड़े रहना है। जो ये लेंगे ना टोकन, इसको हम लोग हाथों हाथ मदनी काफिले में सफर करना कहते हैं। तो इस तरह के, बाकी बोले कि मैं 2 महीने के बाद जाऊंगा या 15 दिन के बाद जाऊंगा मदनी काफिले में, तो ये यहाँ मुराद नहीं है, हाथों हाथ वाला मुराद है। तो ये हाथों हाथ जो मदनी कोर्स करेंगे, मुख्तलिफ कोर्सेस होंगे, इस्लाह अमाल कोर्स, 12 मदनी काम कोर्स, फैजान नमाज कोर्स, तो ये हमारे रमजान शरीफ के फौरन बाद ये कोर्स होते हैं। तो ये क्या ईद से शुरू हो जाते हैं, ये मुझे ध्यान नहीं है बराबर। नहीं, ये मतलब कोई ऐसा इनका निजाम होता है कि ये कोर्सेज को भी इसी तरह, हाँ, ये जा नहीं सकते, मतलब ये साथ ही रहते हैं। हाँ, तो इनको भी भले, इनको भी टोकन दे दिए जाए। तो आपके इस ऐलान से गोया कि हमारी मदनी काफिला मजलिस और कोर्सेज की जो मजलिस है, उसका समझे कि आज से काम और तेज हो जाना चाहिए कि जितनी ये तरगीबात दिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह इसी कदर ये आशिकान रसूल मदनी काफिलों के लिए और कोर्सेज वगैरह की तैयारी करेंगे। जो तरीक़ेकार अमीर सुन्नत ने बयान फरमाया है कि फिर इस तरह इनकी वेरिफिकेशन हो और उसके बाद इंशाअल्लाह मुलाकात की सादत भी नसीब होगी। तो इससे अल्लाह की रहमत से आपको मुलाकात जो आपको करनी है, मुलाकात का भी एक काम हो जाएगा और फिर खुद हमारी इस्लाह का ज़रिया, और मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है। माशाअल्लाह। अब इसमें देखो दिल बड़ा रखिएगा। अब मैं भी नोट कर रहा हूँ कि तासुरात में कोई कोई कहता है कि मैं तो मिलने के लिए आया हूँ। इसमें बाद ऐसे भी होते हैं जज्बाती के पता चलेगा ना कि मुलाकात नहीं होगी तो चले जाएंगे, ऐसा याद पड़ता होता है। अब भी हुआ होगा कि वो चले गए होंगे कि अच्छा मुलाकात होगी ही नहीं, तो किसी ने कह दिया होगा बिल्कुल नहीं होगी मुलाकात, तो वो हो सकता है चले गए हों। तो ऐसा नहीं करना, आप जाइएगा नहीं। मुलाकात हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल अल्लाह की रिजा है। यहाँ पड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रिजा भी हमें मिलती रहेगी और जन्नत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है, जाना नहीं, बिल्कुल किसी सूरत से भी नहीं जाना। आज दिल नहीं लगता तो कल लग जाए, कल दिल नहीं लगता परसों लग जाएगा। अल्लाह करेगा दिल ऐसा लगेगा कि फिर आपका जज्बा होगा कि तुम घर को न खींचो, नहीं जाता नहीं जाता मैं छोड़कर फैजान मदीना नहीं जाता इंशाअल्लाह। चले, मुबारक हो आपको माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत से मुलाकात की सूरत हमारे सामने आ गई, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वो असल में तासुरात में एक इस्लामी भाई कुछ अपना बता रहे, सर्कस में और नाच में और ड्रामों में ये काम करता रहा हूँ। फिर उन्होंने ये कहा था कि जो लोगों के बाद मेरी वीडियोस हैं, मैं अपने फील्ड में, ये उस इलाके में या अपने गांव में मशहूर होंगे, तो वीडियोस हैं तो उनका गुनाह मुझे मिलेगा, ये सवाल उन्होंने किया है। जी जी, बाबुल मदीना के। अच्छा, बाबुल मदीना ही के। जी जी। अच्छा, तो बड़ा शहर है। तो अब इसमें ये कि अव्वल तो सच्ची तौबा तो इन्होंने माशाअल्लाह इनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि कर ली है। अगर वो अभी हो तो इनको कैमरा मैन दिखा भी देता कि बराह रास्त से अमीर सुन्नत से मदनी फूल ले लें। अगर अल्लाह करे ये हो, सुन रहे हो, ये उठ जाए, हाथ थोड़ा ऊंचा करेंगे, अगर आप हैं तो कैमरा मैन आपको ले लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपको बराह रास्त अमीर सुन्नत के मदनी फूल ये आ गए माशाअल्लाह। तो इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तौबा तो कर चुके, अल्लाह कबूल फरमाए। और इसमें
अब जो वीडियोस वगैरह हैं, इसके लिए आप कोई अपनी वीडियो अपने चलाएं व्हाट्सएप पर या फेसबुक पेज है तो उस पर, या जो जो आपके पास ऑप्शन है इस तरह के उनमें, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गया हूँ और मैंने अपने पिछले इन कामों से, नाच गानों वगैरह से मैं सबसे तौबा कर चुका हूँ। और मुझे इसका अफसोस है कि मेरी वीडियोस कुछ मतलब यानी कि सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड हुई हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के मदनी इल्तिजा करता हूँ कि मेरी तमाम वीडियोस आप हजरात डिलीट कर दें, और जिनके पास हो और उनको मेरा पैगाम नहीं पहुंचा और आपको पता है, उनसे भी डिलीट करवा दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। इस तरह के जुमले अब इसमें ये सारे जुमले आपको याद नहीं रहेंगे। अगर आप तो नेट वगैरह का अगर सिस्टम जानते तो ये सारा नेट पर तो जा रहा होता है, तो वहां से ये मेरा हिस्सा जो है ना, ये आप खुद निकाल लें, अपलोड कर लें, जो भी इसका तरीकाकार हो, और इसको या तो लिख लें या रट लें, तो इस तरह एक अच्छे अल्फाज में आप ये पैगाम जारी कर सकेंगे। शॉर्ट हो कि लंबा लोग कम सुनेंगे, 1-आध मिनट का हो, तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि इससे वो लोग मिटा देंगे और आपकी तरफ से तौबा का एक ऐलान हो जाएगा, फायदा होगा इसका। या ये भी हो सकता है कि अभी अगर आपको माइक मिल जाता है तो अभी आप ये कह दें, या माइक भी खुदा जाने किस तरफ पहुंच रहा हो अभी। हाँ, ये तो माइक वो, तक खुद ही पहुंच जाएंगे। हाँ, जो मैंने अर्ज किया वो कह दीजिए। ये माइक तक जा रहे हैं। एक मुतकिफ ने कहा था कि वो जो मसाजिद में जो कूड़ा या इस तरह की बाल वगैरह होते हैं, तो इन्होंने कहा था ये उठाएंगे तो सवाब मिलेगा और नहीं उठाएंगे तो गुनाहगार होंगे। तो क्या शायद आपने इस पर भी एक नोटिस लिया था? थोड़ा आगे पीछे होकर इन्होंने मतलब कोई गुनाह का लफ्ज लिया था, और ऐसा लग रहा है कि ये इसी तरह के तनाजुर में कहा था इन्होंने, तो इसको भी लेते। सलाम अलैकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद मोइन अत्तारी कोरंगी से हाजिर हुआ हूँ। तो ये मैं तौबा करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी वीडियोस वगैरह थी ना, तो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी तौबा नहीं है, तुम्हारी तो वीडियो लोग देखते हैं, तो इससे कौन सी तौबा हो गई तुम्हारी? तो ये मैं आपसे पूछने वो कर रहा हूँ। तौबा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अल्लाह कबूल करे। आमीन। और आप ये जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, आप ऐलान कर दीजिए कि जिन जिन के पास मेरी वीडियोस हैं, हाथ जोड़कर मैं इल्तिजा करता हूँ कि मैं चूंकि तौबा कर चुका हूँ, तो इसलिए इसको आप मेहरबानी करिए डिलीट कर दें। ये जुमले अगर कह सकते हैं आप। क्या मैं तौबा करता हूँ कि अगर जिसके पास भी मेरी वीडियो है, मैं हाथ जोड़ के तौबा कर रहा हूँ, मेरी वीडियो डिलीट कर दें। जिनके पास मेरी वीडियोस हैं, लेकिन वो मेरा अगर ये ऐलान नहीं भी सुन रहे और आप सुन रहे, तो उन तक पहुंचा दें कि वो डिलीट कर दें। सबको मैं अपील करता हूँ। अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है, क्या नहीं कंफ्यूज हो गए इतनी मखलूक में। मेरी वीडियो जो सकता हूँ मदनी चैनल पर लाइव है ना अभी, तो एक खौफ तो आता है ना। बाबा जान मुझसे अभी नहीं हो रहा, मैं वैसे कर लूँगा प्रैक्टिस करके वीडियो व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह बाबा जान। चलो ये यहाँ भी ऐलान हुआ, इसका भी इंशाल्लाह फायदा तो होगा, लेकिन आप अलग से भी एक बना लीजिए। बापू आप ताउन कर दें इनके साथ, इनका विचारों का ये मसला हल हो जाए ना। हमारी मजलिस इस्लाह बराए फनकार जो है, इनके जिम्मेदार भी इंशाल्लाह मदीना मदीना इनसे तरकीब बना लेते मदीना मदीना इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जी बाबा। हाँ, वो अक्सर मस्जिद में जो बाल वगैरह गुच्छे झूम रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो इनको उठाना चाहिए, क्या सवाब है। अब अगर किसी ने नहीं उठाया, बाल जा रहा है, गुच्छा जा रहा है मस्जिद में, तो उसने खुद नहीं फेंका, किसी का गिराया है
उसको इसने नहीं उठाया, सुस्ती की, तो वो उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे, ठीक है ना, गुनाहगार नहीं कहेंगे कि ये गुनाह मिला, ऐसा नहीं कहेंगे। गुनाह और चीज होती है, हेवी है। अच्छी बात है, फजीलत वाली बात है कि इस तरह की चीजें हम उठाकर शापर में डाल लें या कहीं भी, मतलब यानी अपने जेब में ही डाल लें, शापर नहीं है तो, और इसको बाहर कहीं अदब की जगह पर डाल दें। करना चाहिए, ये करना चाहिए, सवाब का काम है। जी सवाल चलाइए। बापू कुछ तैयारी की है आपने? मेरा नाम है मोहम्मद मोइन अत्तारी। मैं 1 महीने के इत्तेकाफ में बैठा हूँ फैज़ान मदीना में। जो कोई मुझे जानता है, जिनके पास मेरी मोबाइल में वीडियो है गुनाहों वाली, वो डिलीट कर दें और आगे तक ये पैगाम पहुँचा दें कि अब मैं दावत इस्लामी से हो गया हूँ, तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो डिलीट कर दिएगा। माशाअल्लाह। चलो ये मदीना बाबा जान लब्बैक। वो मेरा भाई 5 साल से लापता है, उसके लिए दुआ कर दें। और एक भतीजा है, उसके ना तिलिस्मिया की बीमारी है, तो दुआ कर दिएगा। अल्लाह करीम भाई को खैर से मिलाए, आपके भतीजे को शिफा अता फरमाए। तो चांद रात को भी बेटा हाथों हाथ सफर करना है जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। SMS के जरिए सवालात का सिलसिला है। एक सवाल है कि अगर औरत तरावीह ना पढ़े तो क्या वो गुनाहगार होगी? सुन्नत मुक्कदा है, औरत हो या मर्द, सबके लिए सुन्नतुल मुक्कदा है। और जिसने सुन्नत मुक्कदा को तर्क किया उसने बुरा किया, और अगर बार बार तर्क किया तो गुनाहगार हुआ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे में ठट्ठी जलाल छोटा साहिवाल ज़िला सरगोदा पंजाब पाक सियालवी काबीना और कुनरी ज़िला उमरकोट बाबुल इस्लाम सिंध पाक ओवैसी काबीना की भी खुसूसी शिरकत है। सुभान अल्लाह। सरदाराबाद में मौजूद है माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक सवाल SMS के ज़रिए है कि जो इस्लामी बहन हाफिज ना हो वो तरावी कैसे पढ़े? तरावी पढ़ने के लिए हाफिज होना शर्त थोड़ी है। इस्लामी भाई का हाफिज होते, तो अपनी तरावी जो पढ़ते हैं तो उसमें जो भी सूरतें जो आम नमाजें जो पढ़ते हैं, सूरह फातिहा और सूरत जो भी मिला ले, जो भी इसका तरीका है इसके मुताबिक उसी तरह तरावी पढ़नी है। व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल है, किसी ने मालूम किया है तरावी में नीयत क्या करें, 2 रकत नफल तरावी या 2 रकत सुन्नत तरावी, क्या नीयत करें? 2 रकात तरावी ये नियत कर ले। SMS के जरिए सवाल है कि रोजा रखकर जो तालिबे इल्म इम्तिहान में नकल करते हैं, क्या इससे रोजा टूट जाता है? रोजा टूटता नहीं है, अलबत्ता ये नकल करना है जुर्म। हाँ भाई, रोजे पर क्या कराहत वगैरह का, हाँ वही कराहत, ये मकरू है इससे कम, रोजे को मकरू करेंगे इससे कम, जो ये गुनाहों के काम होते हैं, तो इससे रोजे की नूरानियत जाती रहेगी। नकल तो रोजा हो या ना हो, आम दिनों में भी, रमजान शरीफ के अलावा भी ये इम्तिहान में नकल करते हैं, ये ज़ाहिर है कि गुनाहगार होते हैं। जो नकल करवाते हैं वो भी गुनाहगार होते हैं। मोहम्मद कामरान अत्तारी, अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है, रमज़ान करीम में लोग जल्दी में ही नज़र आते हैं, बेसब्री ही नज़र आती है, इफ्तार में, सफ़र में, ये बता दें कि हम साबिर किस तरह बन सकते हैं? रमज़ान का महीना माह सब्र भी है, इसका एक नाम माह सब्र भी है। तो इसमें तो यानी खाने पीने से सारा दिन सब्र किया, अब इफ्तार के टाइम पर थोड़ा सा वक्त रह गया, इसमें बेसब्री करना,
तो इसमें भी सब्र किया जाए। तो खाने पीने के टाइम में तो शायद इतनी बेसब्री का मुजाहरा नहीं होता। रोडों पे जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बाज लोग बेसब्री का मुजाहरा करते हुए और सिग्नल भी तोड़ते होंगे और ट्रैफिक जाम होता हो तो शोर भी करते होंगे, गालियां भी बकते हो तो ताज्जुब नहीं। तो ये नहीं, सब्र, और हमेशा सब्र कर रहा है। माह रमजान में तो सब्र सीखना है, फिर सारा साल सारी उम्र इसको निभाना है। तो बहरहाल ये बेसब्री से मुश्किल तो आसान नहीं होगी। ट्रैफिक जाम है, हमारे बकबक करने से ट्रैफिक तो खुलेगा नहीं ना, वो जाम ही रहेगा। तो हम सब्र करके क्यों ना अज्र के हकदार बने कि बेसब्री करने से तो वो सब्र का जो अज्र है वो चला जाएगा। और नौजुबिल्लाह इसमें कोई और भूल करेंगे, जैसे कोई गाड़ी वाला खड़ा है, अब वो गुस्सा आया, आपने वो अपना दरवाजा खोला और झाड़ना शुरू कर दिया कि रास्ता दे, चल हट, तो ये फिर या गुनाहों की सूरत बनना शुरू हुई कि ये तो अगले की दिल आजारी है, उसकी तजलील है। तो ऐसा ना किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल आया है SMS के ज़रिए कि ये जो जुलूस निकालते हैं रबीउल अव्वल शरीफ का, 11वीं शरीफ का और भी बुज़ुर्गों के अय्याम में, तो क्या इसका कोई सबूत है? इसके ना निकालने का कोई सबूत है? यार वो सियासी तरह तरह की रैलियां, रेले, पता नहीं क्या क्या निकलते हैं। अरे इनका सबूत मांगने का ज़हन बना किसी का कि जब हम अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हुए निकलते हैं, बुजुर्गान दीन का जिक्र करते हुए निकलते हैं, तो नाते पढ़ते हुए निकलते हैं, तो फिर वो वसवसा आता है कि इसका कोई सबूत है। तो इसलिए ये उसूल याद रखिए कि जो काम शरीयत से नहीं टकराता, शरीयत ने मना नहीं किया, वो जायज़ है। और किसी ऐसे काम को जो शरीयत ने मना ना किया और मुसलमान अच्छा समझ कर करें, जिनमें उलमा सोलहा खासकर अच्छा समझ कर करें, तो वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। ये एक उसूल है। वरना तो सबूत तो ये दर्स निज़ामी किया जाता है, जिसको आलिम कोर्स कहते हैं। हकीकत में ये वाकई आलिम कोर्स नहीं है, फ़र्क है इसमें थोड़ा, लेकिन मतलब ये कि इसमें इसके ज़रिए आलिम बना जाता है। तो अब दर्स निज़ामी का सबूत कहाँ से कि इस अंदाज में दर्स निज़ामी पढ़ाया जाना, इल्म सर्फ और नहव, ये तो हदीसों में साबित ही नहीं है। इसी तरह भी हदीसों की किताबें बुखारी तो मुस्लिम तो कोई भी नहीं थी, साहबा के दौर में नहीं, ताबेइन के दौर में नहीं, तबे ताबेइन के दौर में भी ये बुखारी वगैरह कहाँ थी, क्योंकि इमाम बुखारी तो बाद में आए। तो ये सब इनसे सबूत साबित होते हैं, बहुत सारी दलीलें साबित होती हैं। फिर कुरान करीम जिस अंदाज में हमें छपा छपाया मिल रहा है उस दौर में नहीं था। तो अब इन सब का सबूत वही है कि मुसलमान जिस काम को अच्छा समझ कर करें और शरीयत ने उसको मना ना किया हो, तो वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। भाई ये उसूल अगर याद रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह बहुत सारे वसवसों की काट हो जाएगी। इतने हजारों मिलकर एतिकाफ करने का सबूत कहाँ से लाएंगे? पहले के दौर में कहाँ था ये अंदाज? तो हमने कहीं किताबों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये कि शरीयत ने मना भी नहीं किया, अच्छा काम है, मुसलमान कर रहे। लेंथर की मस्जिद बनी हुई है, पंखे सरों पे घूम रहे हैं, एसी लगे हुए हैं, मौज लगी हुई है। तो ये कहाँ था पहले? फिर और हमने थोड़ी मस्जिद नबवी शरीफ में भी तो ये सारे लगे हुए हैं, और सोने के झूमर लगे हुए हैं, और फुल एयर कंडीशनड। हमारा एयर कंडीशन तो ऐसे ही है, डब्बा है, सही बोलता हूँ। वहां तो मतलब वो क्या बोलते हैं एयर कंडीशन का वो निजाम, वो सेंट्रल एसी। हमारा सेंट्रल एसी है नहीं, हमारा सेंट्रल भी हो, सेंट्रल तो इतनी सी सेंट्रल ही, वो बड़ा सेंट्रल एसी, और मीलों दूर उसका प्लांट लगा हुआ है मस्जिद नबी शरीफ का, करोड़ों अरबों रुपए का, समझे? तो इस सब का शरीय सबूत कहाँ से लाएंगे? खाली मतलब नात पढ़ने का ही और मनकबत पढ़ने का ही शरीय सबूत चाहिए? घरों में एसी लगाकर जो मजे से पड़े होते हैं, ये सबूत कहाँ से लाएंगे शरीय? तो सबका शरीय सबूत मौजूद है।
शरीयत ने मना नहीं किया तो जायज है, दैट्स ऑल, वरना तो अब कदम भी नहीं उठा सकते। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, फिर स्क्रीन पर फोन के जरिए आपने सवाल रिकॉर्ड करवाया, इसका शरई सबूत कहां से लाएंगे आप? तो है शरई सबूत कि जायज है, मना नहीं है। तो ये उसूल याद रखेंगे ना तो 11वीं 12वीं 6ठी शरीफ, आज की तीसरी शरीफ, बीबी फातिमा की तीसरी शरीफ है ना आज, ये सब साबित हो जाएगा अगर ये उसूल याद रख लेंगे। शरीयत ने जिस काम को मना नहीं किया वो जायज है, खलास। कोई किसी का अच्छा भी इसको नाजायज नहीं कह सकता। जो कहेगा उसका कहना नाजायज है, कि जिसको शरीयत ने नाजायज नहीं कहा, हु आर यू, तू कौन है जो नाजायज कह रहा है? ये मैं शरई बात कर रहा हूँ, ये बोल बचन नहीं दे रहा, ये शरई उसूल बयान किया मैंने। कोई भी आलिम दीन मेरे इस उसूल को चैलेंज नहीं करेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ हासिल है उनको दामन ज़हरा से निस्बत का, शरफ हासिल है उनको दामन ज़हरा से निस्बत का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ हासिल है उनको दामन ज़हरा से निस्बत का, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ, जो जाना खुल्द में हो, हाँ जो जाना खुल्द में हो पाए ज़हरा से लिपट जाओ, जिसे कहते हैं जन्नत मुल्क है खातून जन्नत का, जिसे कहते हैं जन्नत मुल्क है खातून जन्नत का, जिसे कहते हैं जन्नत मुल्क है खातून जन्नत का, है रुतबा इसलिए कौनैन में इस्मत का इफ़्फ़त का, शरफ हासिल है इनको दामन ज़हरा से निस्बत का, नबी के दिल की राहत और अली के घर की ज़ीनत है, नबी के दिल की राहत और अली के घर की ज़ीनत है, बयान से हो उनकी पाक तीनत पाक तलअत का, बयान से हो उनकी पाक तीनत पाक तलअत का, बयान से हो उनकी पाक तीनत पाक तलअत का, रसूलुल्लाह की जीती रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर को देखा, रसूलुल्लाह की जीती जागती तस्वीर को देखा, या नज़ारा जिन आँखों ने तफसीरे नबूवत का, या नज़ारा जिन आँखों ने तफसीरे नबूवत का, या नज़ारा जिन आँखों ने तफसीरे नबूवत का। मेरा एक सवाल है, दीनी कोई भी तहरीर जिसमें कुरान की आयत ना भी हो तो क्या उसको भी वुजू करके लिखना लाजिम है? आयत जब लिखेंगे तो वुजू तो होना चाहिए ना, जिसमें दीनी तहरीर कोई भी, अच्छा दीनी तहरीर को, अच्छा जिसमें आयत ना हो, हाँ ऐसा मजहबी मसलन लिखना, हाँ ये मतलब बेवुजू जायज है। अगर कुरान करीम का तर्जमा लिखते हैं तो फिर उसमें जी उसमें जरूरी है कि वजू करके लिखेंगे न, आयत या तर्जमा कुरान लिखे तो वुजू हो, और दीगर तहरीरें हैं या हदीस पाक है तो इनको लिखता है तो बेवुजू भी लिख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मौलाना साहब अगर कोई बंदा सफर में है और उसे अजान की आवाज भी नहीं आई तो वो बंदा वक्त का अंदाजा लगाकर क्या नमाज पढ़ सकता है? अंदाजा नहीं, इसमें ये है कि हर एक पर फर्ज आइन है कि उसको नमाजों के वक्त की मालूमात हो। तो अब तो आसान है, मतलब अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ये 27 लाख से ज्यादा मकामात के नमाजों के औकात, टाइमिंग ये लिखे हुए, उसमें से देखकर टाइम की तरकीब बनाई जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला है। राना नवीद कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों को 786 वाले नोट जमा करते देखा है, कहते हैं इससे पैसे में बरकत होती है। 786 नंबर होते हैं इसमें? अच्छा, कहीं आगे पीछे होते होंगे इसमें, हाँ, या बीच में होते होंगे। अब ये जो ये करते हैं ये खुद ही बताएंगे कि इनको कहाँ से मालूम है कि इससे बरकत होती है। वो जमा करेंगे तो ये तो फिर वारिसों के हाथ में जाएगा, या चोर उठा ले, डाकू ले जाएगा, चोर ले जाएगा। ये नोट जमा ना करने में ही बरकत है। अगर यूं मैं कहूँ ना, ये ज्यादा मतलब गहरी बात मैंने की है। जितना आगे भेजेंगे राय खुदा में देकर, वहां जमा करेंगे ना आखिरत के लिए, तो वहां से बरकत ही बरकत है। तो कमी की सूरत नहीं है, न जाया होने की सूरत है, न चोरी की सूरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खालिद आवान पूछ रहे हैं कि हम अपनी नेकियां दूसरों को इसाले सवाब कर देते हैं तो हमारे पास रहेंगी या नहीं, और कोई इसाले सवाब इसलिए ना करे कि मेरी नेकियां कम हो जाएं, तो इसको कैसे समझाएं? नेकियां बढ़ जाती हैं, इसाले सवाब से कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, कम भी नहीं होती, बल्कि बढ़ती हैं। तो इसलिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। जिन्होंने ऐसा कहा कि नहीं मतलब खत्म हो जाती है, तो इनकी गलत फहमी है। उलमा से पूछेंगे तो वो इंशाल्लाह वही जवाब देंगे जो मैंने अर्ज किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ताह सुन्नत हमारा यूके में भी है, और हमारे एक इस्लामी भाई यूके के, इनकी एक गैर मुस्लिम से मुलाकात हुई और उनकी बातचीत वगैरह हुई किसी सफ़र वगैरह के दौरान। तो उनमें इन्होंने इस्लाम की दिलचस्पी पाई और इन पर इनफरादी कोशिश की। इनसे वक्त वगैरह भी इनका तय हुआ कि आप आएँ, हमारे यहाँ दारुल इफ्ताह सुन्नत है, वहाँ हमारे इस्लामी स्कॉलर्स होते हैं, उलमा होते हैं, और आप वहाँ आकर उनसे बात करें। तो वो हमारे जो मिले उनको थे वो आए और इन्होंने हमारे दारुल इफ्ताह सुन्नत में इस्लामी भाई से बात हुई, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया दारुल इफ्ताह सुन्नत में, और इसका मंजर हमारा रिकॉर्ड हो गया। क्योंकि ये पहले से उन्होंने ये दावत दी हुई थी, आए थे, और इस अंदाज से ये तरकीब हुई। आइए आपको वो हम मंजर दिखाते हैं। माशाअल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is no God except Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is his servant and messenger. And I bear witness that Jesus is the prophet of Allah, and not the son of Allah. And I believe that Islam is the only correct religion. And I reject other false religions. That's it. You become a Muslim. Congratulations.
सगे अवतार साकिब अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज है कि आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर किसी इस्लामी भाई को ये कहते हैं कि आप नेट का ज्यादा इस्तेमाल न फरमाएं, तो उनका जवाब कुछ इस तरीके से भी होता है कि आजकल के दौर में नेट भी जरूरी है। प्यारे मुर्शिद करीम प्यारे प्यारे मलफूजात से हमें नवाज दीजिए कि हमें कितना नेट का इस्तेमाल करना चाहिए और हम किस तरीके से नेट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें किस किस मौके पर नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। इस तरह के सवालात के जवाबात शायद 20 बार दिए जा चुके हैं और समझा चुके हैं हम, और अब अगर मजीद समझाएंगे ना बार बार इतना तफसील से, तो शायद लोग बोर होते होंगे। तो इसलिए आपका जज्बा मरहबा। नेट पर ये सारे जवाबात आपको मिल सकते हैं, वेबसाइट पर दावत इस्लामी है, तो वहाँ से निकाल कर जिसको समझाना हो वो समझाया जा सकता है। निगरान शूरा ने भी बहुत कलाम किया इस पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं खावर अली हूँ। मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल है, मजदूर से जो ठेकेदार कमीशन लेता है बिना तय करे, तो ऐसा करना कैसा है? मजदूर से ठेकेदार कमीशन लेता है? मजदूर से ठेकेदार किस तरीके से कमीशन लेता है? अब ये कि उसको काम दिला देता है कहीं पर, या कोई और सूरत होती है? अगर काम दिला कर देता है इसको कहीं पर, और वैसे ही पहले से इनके यहाँ तय है कि मैं कहीं काम दिलाऊंगा तो तुमसे इतने पैसे में काम दिलाने के लूँगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं लेके जा रहा हूँ, तो इसमें तो जवाज़ की सूरतें निकलती हैं। लेकिन अब ये सूरत है क्या कि ठेकेदार किस तरीके से मजदूर से कमीशन लेता है, वाज़ेह है नहीं यहाँ पर। सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद उवैस ओकाड़ा से पूछ रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में तो शैतान कैद होता है, तो फिर गधा किसे देखकर बोलता है? कौन से शैतान को देखकर बोलता है गधा? ये तय कैसे होगा? शैतान को देखकर बोलता है, ठीक है ना? तो हर एक के साथ एक शैतान होता है, हमजाद जिसको बोलते हैं वो शैतान तो होता है, तो हो सकता है उसी को देखकर बोलता हो। फिर एक जब जब बोलता है तो शैतान को देख ही कर बोलता है, इसके बगैर बोलता ही नहीं है। ये भी कैसे पता चले? तो अब इस तरह मतलब हदीस की शरह जब तक ना देखें तो कैसे कह सकते हैं? तो बहरहाल शैतान बोले तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। वैसे भी हम तो तिलावत करें तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही है ना, कि पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से। तो क्या अब रमजान में नहीं पढ़ेंगे? अऊज़ु पढ़ेंगे ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक पर अरमान हुसैन पूछ रहे हैं कि आप फतवा रज़विया के जुजिये का इस लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं, ये जुजिया क्या है और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ भाई मौलाना, जुजिया इंग्लिश, आप लोग जानते हैं इंग्लिश न। कोई इबारत हवाला जुज़इया, जुज़ माने हिस्सा, तो ये कि उस किताब का कोई मतलब हवाला हिस्सा, ये इबारत ये पेश की जाती है, गालिबन इसी को जुजिया बोलते हैं। सगे अत्तार मोहम्मद बहादुर अली अत्तारी मुल्तान से अर्ज़गुज़ार हूँ। पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ जिससे हाथ की हड्डी टूट गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है और टांके भी काफ़ी आए हैं। तो डॉक्टरों ने मना किया है कि आपने इस दौरान पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और इसको पानी से बचाना है, वरना आपके जो ज़ख़म है वो देर से अच्छा होगा, ख़राब होने का भी अंदेशा है। तो तयम्मुम कर कर आप नमाज़ें पढ़ें। तो बापा जान आप इरशाद फरमाएं कि इस बारे में मैं क्या करूं? अभी तक तो तयम्मुम कर कर ही नमाज़ें पढ़ रहा हूं। आपसे दुआए सेहत की बिल्तिजा है, सेहत व आफियत के साथ यहाँ दुरुस्त हो जाए। मदनी कामों में काफ़ी रुकावट हो रही है, बापा दुआ फरमा दें हमारे मदनियत भी बढ़ जाए और हमारे मदनी कामों में भी मजबूती आ जाए। अल्लाह करीम आपको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमाए। इसमें अगर कोई बाशरा माहिर तबीब खौफ खुदा वाला ये मशवरा देता है तो मान लिया जाएगा।
या खुद अपना मरीज का तजर्बा है कि पानी डालने से जख्म खराब होगा, तो उस सूरत में भी वुजू के जो हिस्से कोरे हैं, जो दूसरे जो जख्म नहीं है, वो तो धोने पड़ेंगे ना। यानी वुजू किया जाएगा, तयम्मुम इस पर नहीं किया जाएगा। बाकी जो हिस्सा जिसका या तो वो है ही अंदर, अब पानी नुकसान नहीं भी कर रहा लेकिन प्लस्तर बंधा हुआ है तो अंदर धुलना नामुमकिन है, तो ऊपर से इसको हर जगह एक एक जर्रे पर उसके जितना धोने का फर्ज है उस हिस्से पर पानी वाला भीगा हाथ ये फेरना होगा कि उसको तरी पहुंच जाए, तो ये मसहा हो जाएगा। आज शाम मरकज़ुल औलिया लाहौर में मेन कलमा चौक में एक प्लाजे में आग लग गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है इनके लिए दुआ भी फरमा दें। और एक करम नवाजी ये हुई कि इसी प्लाजे के ऊपर ईद मिलादुन नबी के झंडे लगे हुए हैं, 3 फ्लोर जल गए हैं लेकिन वो झंडे नहीं चले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम रहमो करम फरमाए, कब्र जहन्नम की आग से हमको महफूज फरमाए। और जो बेचारे जिनके नुकसान हुए, जानी नुकसान का कोई तस्करा इन्होंने नहीं किया, इसका मतलब माली नुकसान हुआ है, तो जो भी माली नुकसान जिन जिन का हुआ है अल्लाह करीम उनको सब्र भी दे, अजर भी दे और इनका नेमल बदर अल्टरनेट भी इनको इनायत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अत्तारी है। मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना कराची से है। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज है, कोई ऐसा वजीफा इरशाद फरमा दें जिससे औलाद खूबसूरत पैदा हो। अल्लाह पर करोड़ रहमतों का नज़ुल फरमाए। ये दस्तरखान से जो दाने गिरे होते हैं ना, ये चुन कर खाने की आदत बनाए। एक जर्रा भी दस्तरखान पे गिरा हुआ जाया ना हो, ये सबके लिए। इंशाल्लाह इसका एक फायदा ये होगा कि औलाद बेऐब और खूबसूरत पैदा होगी। लेकिन इतना गिराते हैं यार कि खुदा की पनाह, वो खास कर ये जिससे कि हालांकि एहतिकाब में आए हुए फिर भी इतना गिरा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी जो करीब बिल्कुल होता है ना वो भी गिरा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ऐसा होता है कि जो संभाल लेता है, कोई को उठवाता है। ये हमारे जो बेचारे ऊपर थाल वगैरह लेकर खड़े होते हैं, आमतौर पर ये भी किसको संभाले, इनका भी इतना ज़हन नहीं होता। बाजों का होता है कि एक एक से मतलब दाने उठवाने चाहिए, या तो नाराज होगा तो मतलब कैसे काम चलेगा, तो है तरबियत लेने के लिए, सीखने के लिए ही आते हैं। तो एक एक दाना, आधा दाना हो, चौथाई हिस्सा हो दाने का, जर्रा हो, वो भी जाया नहीं होना चाहिए, पेट में जाना चाहिए। ये सब जहन बना ले, गिराते बहुत हैं यार। इसकी वजह से क्या अजब के महंगाई बढ़ती हो, खाना बहुत जाया हो रहा है। खाली यहाँ की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर में बहुत जाया हो रहा है खाना। करोड़ों रुपए का रोजाना खाना जाया होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद सुहेल अत्तारी। अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये करना है कि हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी नहीं था। इस तरह का जुमला कहना कैसा, क्या ये इनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं? बराए करम जवाब इरशाद फरमाए। वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं, ये एक मुहावरा है, बचपन से सुनते आ रहे और इसमें कोई कुफ्र नहीं। हजरत सैयदना लुकमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, वलीजुल्लाह हुए और अल्लाह के नेक बंदे, मकबूल बंदे। ऐसे मकबूल के कुरान में इनका जिक्र खैर और सूरह लुकमान कुरान में मौजूद है। तो ये वो हकीम, जड़ी बूटियों के जो हकीम होते हैं ना, आमतौर पे जो भले जड़ी बूटियां इनके कदमों में लौटती होंगी और ये तिब भी जानते होंगे, लेकिन हकीकत में इस वजह से हकीम है ये मुराद नहीं है कि जो मतलब खोलकर, दवाखाने खोलकर बैठे होते हैं, देसी दवाएं बेचते हैं या देते हैं, ये हकीम मुराद नहीं है। हिकमत और दानाई की बातें, अक्लमंदी की बातें, इल्म की बातें इनसे बहुत जाहिर हुई हैं। तो ये इस वजह से हकीम ने समझदार, दाना, बहुत ज्यादा अक्लमंद बुजुर्ग हुए।
इस तरह से वो हकीम है। तो ये एक मुहावरा है कि वहम एक ऐसा मरज है कि यार छोड़ो वहम को यार, वहम की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पर कोई हुक्म कुफ्र लगा दिया जाए, माअज़ल्लाह। बहरहाल बुजुर्गों का नाम ऐसे कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि ये अगर सैयदना लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाकई किसी वहम के मरीज को दम कर दे, इलाज तो हो जाए, उसका वहम की बीमारी चली जाए, तो इसलिए वो ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए बुजुर्गों के ताल्लुक से। मगर ये कि इसको हम कुफ्र नहीं कहेंगे। हाँ, नबी का मामला और होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा कंप्यूटर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयदा हलीमा तारिया है। सुभान अल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 7 साल है। सवाल शुरू करने से पहले आज करके चलूं, अगर जवाबात में गलती हो जाए तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता नहीं बल्कि शुक्रिया का साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत कब हुई? उम्मु सादात मखदूमे कायनात दुख्तरे मुस्तफा सरदारे खवातीन जहांजना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा मुहद्दिसा मुबारका ज़ाकिया रादिया मर्दिया ज़रा खातून जन्नत ज़हरा बतूल हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कितनी शहजादियां और शहजादे हैं? तादाद और नाम बताएं। 3 शहजादियां, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और 3 शहजादे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत का नाम फातिमा क्यों रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटी और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आजाद किया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब और नाम क्या है? नाम फातिमा और लक़ब ज़हरा और बतूल है। बतूल और फातिमा ज़हरा लक़ब इस वास्ते से पाया कि दुनिया में रहे और दे पता जन्नत की निगत का। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक लक़ब ज़हरा है। बताएं ये लक़ब किस वजह से है? आप जन्नत की कली हैं। आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे, इसीलिए ज़हरा लक़ब हुआ। सुभान अल्लाह। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो इसे न गवार वो मुझे न गवार, जो
سبحان اللہ. جب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح استقبال فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خاتون جنت کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح استقبال فرماتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے مبارک ہاتھوں کو چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. ماشاءاللہ. حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا؟ 3 رمضان مبارک منگل کی رات کو وصال مبارک ہوا. جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سبحان اللہ. آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مزار مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تسبیح فاطمہ کا واقعہ اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے، اب آپ سنائیں گی؟ آئی جب خاتون جنت اپنے گھر پڑ گئے سب کام کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے. دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے. ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے. سن کے زہرا آئی صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر. پڑھنا تھے دولت کا دام شاہدی، والدہ سے عرض کر کے آ گئی. گھر میں جب آئے حبیبے کی بریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا. فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھی، گھر کی تکلیف سنانے آئی تھی. آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی، مجھ سے سب دکھ درد اپنا کہہ گئی. ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں. شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر اور کہا دکھ درد سے ہے جانے پدر. ہے یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے. تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا. ہم تمہیں تسبیح ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں. اولاً سبحان 33 پڑھو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ تو ہو جائیں مل کر سبھی. پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام. خلد کی مفتار راضی ہو گئی، سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئی. سالک ان کی راہ جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے بچے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑا مضبوط. ماشاء اللہ. فاطمہ کمپیوٹر، بی بی فاطمہ کمپیوٹر. بی بی فاطمہ. ماشاءاللہ. طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ، سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ، سیدہ فاطمہ، ہو کرم ہوتا، سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ. ماشاءاللہ. حمید باپو کی شہزادی بھی بڑی مضبوط فاطمہ کمپیوٹر بن کے آئی، اور مہندی بھی لگائی ہے. ماشاءاللہ. وہ اچھی مہندی لگائی ہے. ارے واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو علیمہ، مفتیہ، باعمل، مبلغہ بنائے.
माशाअल्लाह आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुन्नी के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 12,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे और मदनी मुन्नी के अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स दिया जा रहा है। इनके अब्बू के लिए ये मदनी बॉक्स दिया जा रहा है। लिया जा रहा है। इनके अब्बू लिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह क्या बात है। ये दावत इस्लामी है माशाल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज आप मुलाहिजा करें कि किस तरह खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ये शब उर्स मनाई जा रही है, फिर जो बच्ची आई वो खुद सैयदा, और कितने प्यारे अंदाज से इन्होंने आपके मुतालिक बयान किया। बड़ों को मालूमात नहीं होती, बल्कि बसा को देता याद करो तब भी याद नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने दावत इस्लामी पे बड़ा करम किया है और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से ये सारे मामलात हुए और अच्छा याद किया। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत और तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।